Hello, dear students. How are you all? I hope all of you are fine and safe at your home. Again, I am your mentor, Shobna Manlik, to teach you science subject. And in this video lecture, we are continuing with our chapter 5, coal and petroleum. And we are going to complete second half of this chapter, in which we would learn about petroleum, its refining, and natural gas, and some other points. Okay. So, in our previous video lecture, we discussed about coal and its types and how coal is formed. Okay, so today we would discuss how petroleum is formed, what is petroleum, and some points regarding it. So, you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like trucks, tractors, which run on diesel. So petrol and diesel are obtained from natural resource called petroleum. So petrol is very much important in our day-to-day life. All know that, right? Without petrol, our vehicles would not run, and without vehicle, we would just become like handicapped, right? We are that much used to all the vehicles. So petrol is main important thing in our daily life. So this petrol is available from natural resource called petroleum. So what is this petroleum actually? So petroleum word is made up of two words. Petro, P-E-T-R-O, petro, plus oleum, O-L-E-U-M. So petro plus oleum, it makes the word petroleum, where word petro means rock, okay, rock or say stone, and oleum means oil here. So oil which is available from rocks, that is known as petroleum. So we are going to learn about petroleum, and this petroleum is derived from word petra means rock, oleum means oil, as it is mined from between the rocks under earth, as shown in figure. You can see here that under earth that reservoir rocks are there, and between these rocks that water, oil and gas, these are available. Now as you can see that water is heavier, so water layer is downwards, and above water oil its layer is there, and gas is lighter than oil, so it floats on water. And when its mining is done and this petroleum is extracted, first of all natural gas is available, then oil, and finally water. Okay, so here you may be asked a question that during extraction of petroleum and natural gas deposits from earth, then which uh, which one would be first available, or which one would be in upper layer? So you can answer that natural gas would be the first, then oil, and then water. So how this petroleum is formed? So petroleum was formed from organism living in sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of sea and got covered with layers of sand and clay. ओके, क्या हुआ कि पेट्रोलियम जो है वो ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते हैं उनसे फॉर्म हुआ है. जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म डेड हुए, उनकी बॉडीज जो है वो बॉटम जो लेयर है उनमें सेटल हो गई, और उनके ऊपर सैंड और क्ले के लेयर्स फॉर्म होते गए. And over millions of years, in absence of air and high pressure and high temperature, that dead remains they converted into this petroleum. Okay, और natural gas भी इनसे ही form हुआ. So in figure you can see that deposits of petroleum and natural gases are arranged in that manner. You see that layer containing petroleum, oil and gas is above water. Okay, ऑयल और गैस के जो लेयर्स है वो वाटर से ऊपर रहेंगे. और ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि ऑयल और गैस जो है वो वाटर से कम हैवियर होते हैं, तो वो उनके ऊपर फ्लोट करेंगे पर उनसे मिक्स नहीं होंगे. वैसे भी वाटर से ऑयल मिक्स होता है कभी नहीं, तो यही रीज़न है कि ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होगा, बट वाटर के ऊपर उनका एक लेयर फॉर्म हो जाएगा.
The world's first oil well was drilled in Pennsylvania in USA in 1859, and 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam in India. So oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and in the river basins of Godavari and Krishna. हमारे इंडिया में भी इनके occurrences है जो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं. Now this petroleum is available from earth crust, and once it is extracted, it is directly not given to us as a petrol. Okay, first of all it is refined. इनका शुद्धिकरण किया जाता है और इनसे जो ज़रूरी सब्सटेंसेस है उनको सेपरेट किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलते हैं. रिलायंस का नाम तो हम सब ने सुना है ना. तो रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो वही काम करती है जो उनसे पेट्रोलियम है उनका एक्सट्रैक्शन करती है, और जो भी प्रोडक्ट्स मिलती है उनको अलग अलग सेपरेट करके उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचा के उनके जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू एक आम आदमी तक वो पहुंचती है. ठीक है, तो इनका रिफाइनिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है. सो व्हाट इज एक्चुअली द रिफाइनिंग? So petroleum, it's dark oily liquid and it has unpleasant odor. So it is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax. The process of its refining, its separating of various constituents is known as fraction of petroleum, fractional distillation of petroleum, and it is carried out in refineries. सो पेट्रोलियम रिफाइनरीज, उनके एग्जाम्पल लिए जाए तो रिलायंस एक रिफाइनरी है. रिलायंस की जो रिफाइनरीज है वो सेम प्रोसेस करती है. ठीक है, तो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स जो है पेट्रोलियम के उनके यूजेस आपको टेबल 5.1 में दिए गए. सो फर्स्ट वन है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिनको हम एलपीजी बोलते हैं, और डेली कहाँ यूज़ करते हैं हम एलपीजी को? किचन में. ओके, इन किचन सिलेंडर इज अवेलेबल इन विच एलपीजी इज देयर. And what is full form for LPG? Yes, it is liquefied petroleum gas, which is available as a fuel in home as well as in some industries. LPG is also used. Next is petrol, which is used in as a motor fuel, aviation fuel also, and solvent for dry cleaning. Dry cleaning में भी पेट्रोल को यूज़ किया जाता है. Okay, third one है kerosene. So kerosene is most common. It's available in our home also, and it's used as a fuel in stoves, lamps, and for jet aircraft also kerosene is used. Next one is diesel, which is fuel for heavy motor vehicles, electric generators also. तो इनको हैवी जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके लिए एज अ फ्यूल यूज़ होता है. वहाँ पे पेट्रोल यूज़ नहीं होता, और यहाँ पे पेट्रोल की जगह डीजल यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी हम डीजल यूज़ करते हैं. देन फिफ्थ वन इज lubricating oil, which is used for lubrication. Do you know what is lubrication? Lubrication means reducing friction by using some substances. Okay, so lubricating oil is a substance which adds a layer between two surfaces, and so that friction reduces, and wear and tear of particular machines or its parts, it reduces. Okay, and sixth one is paraffin wax. So paraffin wax is also available from petroleum, and it is used to prepare ointments, means जो दवाइयाँ होती है, right, and candles and vaseline. Okay, bitumen is last product which is used for paints and road surfacing. So पेंट के प्रोडक्शन में और रोड सरफेसिंग में बिट्यूमिन को यूज़ किया जाता है. इसे हमने कोल वाले पोर्शन में भी डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि कोल टार की जगह अब बिट्यूमिन भी यूज़ हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेट्रोलियम के रिफाइनिंग को यहाँ भी हमने शो किया है कि उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोला जाता है. पेट्रोलियम के लिए हम क्रूड ऑयल जैसा वर्ड भी यूज़ करते हैं. ओके, सो यहाँ पे इस प्रोसेस को आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया. सो व्हेन क्रूड ऑयल इट रीचेस रिफाइनरी, इट इज़ हीटेड अंटिल इट इवेपरेट्स. तो इनको बर्न नहीं किया जाता स्टूडेंट्स,
जस्ट कीप दिस इन माइंड, इनको सिर्फ हीट प्रोवाइड की जाती है. एज यू कैन सी हियर, आई जस्ट शो यू वेट. Here, so this pointer in red, it shows that here crude oil, that arrow. So this pointer shows that heat is provided. यहाँ पे आपको जो drops के form में दिखाया गया, that drop shows that crude oil is being heated and then it is passed to this tower. Now this tower is airtight and it is divided into various fractions. तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग टेम्परेचर पे वो अवेलेबल होगा. जैसे जैसे ये क्रूड ऑयल इवेपरेट होगा तो जिनका इवेपरेशन पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, वैसे वैसे वो धीरे धीरे ऊपर की ओर वेपर के फॉर्म में जाएगा. और धीरे धीरे जैसे जैसे कूल डाउन होता जाएगा, अपने आप उनकी जो भी अवेलेबल ओपनिंग है वहाँ से वो अवेलेबल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रोसेस दी गई कि एज द वेपर से हाइड्रोकार्बन गैसेस दे कंडेंस बैक इनटू लिक्विड, द कॉलम्स इट सॉर्ट्स द डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच अदर एंड रिमूव्स देम फ्रॉम साइड्स ऑफ कॉलम. तो यहाँ पे कॉलम की जो साइड्स दी गई है पाइपलाइन के फॉर्म में, वहाँ से वो अवेलेबल होंगे. एंड द लार्जर हाइड्रोकार्बन विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट टर्न बैक इनटू लिक्विड्स at the base of column, and smaller hydrocarbons they stay as gas and they rise up in column and condense at different levels. अलग अलग टेम्परेचर लेवल पर वो फिर से कंडेंस होते जाएंगे और वेपर से वापस लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे और हमें अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में अवेलेबल होंगे और इनकी टेम्परेचर रेंज भी अलग अलग होंगी. जो 20 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, जैसे आप देख सकते हो कि रिफाइनरी गैस कम से कम टेम्परेचर पर अवेलेबल होंगे, तो उनको हम बॉटल गैस मतलब कि एलपीजी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. सो दिस रिमेन्स एज गैसेस. और सेकंड आप देख सकते हो कि पेट्रोल है जो 70 डिग्री सेल्सियस पर अवेलेबल है, उनको व्हीकल में यूज़ करते हैं. नेफ्था इट्स अवेलेबल एट 120 डिग्री सेल्सियस. केरोसिन है वो 170 डिग्री सेल्सियस पर है. तो ये केमिकल्स है जिनको हम जेट फ्यूल में, पैराफिन में या फिर लाइटनिंग के पर्पस के तौर पे या हीटिंग के पर्पस पे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज डीजल विच इज़ अवेलेबल एट 270 डिग्री सेल्सियस. तो वो डीजल फ्यूल्स जो है हैवी ऑटोमोबाइल्स में हम यूज़ करते हैं. ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, उनको हम वैक्सेस में, पॉलिशिंग में या फिर मशीन से उनमें हम फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज़ करते हैं. फ्यूल ऑयल है तो उनको हम शिप्स में, फैक्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल या फिर सेंट्रल हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं. और जो लास्ट में डार्क प्रोडक्ट बचती है, थिक लिक्विड, जो कि अनप्लीजेंट ऑर्डर के साथ अवेलेबल होता है, वो है बिट्यूमेन. उनको हम रोड सरफेसिंग के लिए या फिर रूफिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं. ओके, so these are various constituent of petroleum during fractional distillation which are available at different temperature levels. So this process of refining of petroleum at different temperature levels and different fractions is known as fractional distillation of petroleum. Okay, fractional distillation is a process which separates the different constituent. Okay, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है वो कोल को रिफाइन करने की प्रोसेस है, जिनमें हमें 3 प्रोडक्ट मिलती है, कोल, कोक एंड कोल गैस. ओके, कोक है, कोल्टार है और कोल गैस है. ये 3 प्रोडक्ट हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है कोल का, उनके थ्रू अवेलेबल होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. So next point is natural gas. So natural gas, after coal and petroleum, the most important point is natural gas. It is also very important fossil fuel because it is easy
to transport the gas through pipes. And natural gas is stored under high pressure as it is compressed नेचुरल गैस, जिनको शॉर्टली हम बोलते हैं सीएनजी। तो आप जानते हैं कि सीएनजी ऑटोमोबाइल्स अवेलेबल है, ऑटो रिक्शा है या फिर दूसरे ऑटोमोबाइल्स है जो हैवी डीजल यूज़ करते हैं और पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, पर उनकी जगह अगर सीएनजी यूज़ किया जाए तो वो कम से कम पोल्यूशन जनरेट करेगा और इनको हम ऑलमोस्ट पोल्यूशन फ्री फ्यूल बोल सकते हैं क्योंकि उनके कंबशन से सिर्फ वाटर रिलीज होगा और उनसे तो कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन ऑल्सो एंड इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल because it is less polluting and it's cleaner fuel. And what is advantage of using CNG? That it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. तो डायरेक्टली सीएनजी को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है, हाउस होल्ड फ्यूल के तौर पे भी और ट्रांसपोर्ट में भी। ठीक है, सो सच अ नेटवर्क पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बरोड़ा इन गुजरात, इन सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। अभी हमारे घर पे जो अवेलेबल होता है वो एलपीजी है, ठीक है, वो जो हर जगह अवेलेबल है, बट सीएनजी की जो पाइपलाइंस है वो वडोदरा के नज़दीक अवेलेबल है और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में और अदर प्लेसेस। नेचुरल गैस जो है it is used as a starting material for manufacturing of number of chemicals and fertilizers also. India has vast reserves of natural gases. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in Krishna Godavari Delta also. ठीक है, ये इनके अक्रंसेस दिए गए हैं, तो इनको कभी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लैब फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? आपको ये क्वेश्चन होगा कि कोल और पेट्रोलियम इतने कम अमाउंट में अवेलेबल है, फिनिश हो जाएंगे, तो क्या हम इनको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते? तो आंसर है क्लियर नो, दैट देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। तो हमारे पास अभी के लिए ऐसी कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है जिनसे हम इनको कम टाइम में बना सकें। इनको नेचुरली फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, तो लैब में हम इनको क्विकली प्रिपेयर करें ऐसी कोई प्रोसेस अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इनको जो कंडीशंस चाहिए, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, वो भी लैब में प्रोवाइड करना नामुमकिन के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए कोल और पेट्रोलियम को लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। सो आंसर इज नो, their formation is very slow process and conditions for their formation like high temperature and pressure cannot be created in a laboratory. Clear, students? Now next point is that some natural resources are limited. So as we saw that here you have studied in the beginning of chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest, minerals. तो ये exhaustible है. So you know that coal and petroleum are fossil fuels and it required the dead organism millions of years to get converted into fuels. इनको बनने में सालों लगे हैं. On the other hand, the known reserves of this will last for some 100 years. And moreover, these fuels, these are major cause of pollution also. ठीक है, तो ये दो रीज़न है जिनकी वजह से हमें इन्हें कम यूज़ करना चाहिए। कौन से दो रीज़न हैं? कि एक तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं और एक बार अगर ख़त्म हो गए तो इनका वापस बनना मुश्किल है। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये है कि इनका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट ग्रेटर अमाउंट में एनवायरनमेंट में रिलीज़ होगा and it will create a greater pollution. Okay, so it will create a global warming in turn. So it is necessary that we use these fuels only when it is absolutely necessary. इनकी जब सच में ज़रूरत हो तभी इनका यूज़ करें। बेकार में हमारे पास जो भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स है या कोई भी ऑटोमोबाइल है उनको चलाकर इन फ्यूल्स को यूज़ ना करें। इनका जुडिशली यूज़ किया जाएगा तो ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन को अवेलेबल होगा, अदरवाइज दे वुड जस्ट बिकम स्टेडी। ओके, दे वुड बिकम स्टेगनेंट, दे वुड नॉट बी एबल टू मूव, क्योंकि अभी हमारे पास इनका कोई अल्टरनेट ऑप्शन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है।
और है तो भी इतना एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अभी हम हाइड्रोजन फ्यूल है, उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, तो उनको एज अ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बट उनको कन्वीनियंट वे में यूज़ करने का भी तरीका अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और आसानी से पानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बट वो इतना एक्सप्लोजिव है कि उनको कन्वीनियंट वे में ट्रांसफॉर्म करके हमारे तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई ऐसा अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सो वी शुड यूज़ कोल एंड पेट्रोलियम वाइजली। ओके, तो इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, वो हमें एडवाइस करता है कि हमें पेट्रोल और डीजल है उनको कैसे यूज़ करें जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। इनसे क्या होगा कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पर ड्राइव कर रहे हो, मॉडरेट स्पीड पर ड्राइव कर रहे हो, तो पेट्रोल है उनका यूज़ कम होगा। ठीक है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट। जब आप ट्रैफिक में कहीं फंस गए हैं या सिग्नल्स पे कभी खड़े हैं, तो आप अपना व्हीकल उतनी देर, उनका इंजन है वो कंटिन्यू ऑन ना रखें, उनको बंद कर दे ताकि उतना फ्यूल आप सेव कर पाएँ। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर प्रेशर अगर सही नहीं है तब भी पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होगा, आपको ज़्यादा लीवर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तो तब भी फ्यूल ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो टायर प्रेशर भी चेक करवाते रहना चाहिए और इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। You should also ensure that your vehicle is working properly, it is not having any flaws in it, otherwise it would use fuel in greater amount. Okay, so you can use this petroleum or natural gas or coal wisely and whenever it is absolutely necessary. Okay students, so that is all about coal and petroleum. In our first part we learned that what is coal, what are its various types, and in second half we learned what is petroleum, how it is formed, and where is it available, its occurrences kya hai. And third part was natural gas, and finally we should use this coal and petroleum wisely. Okay, so I hope you are clear with all the points in this chapter. So we end this chapter here, and in next video lecture I'll be explaining exercise of chapter 5. Okay students, so let us finish this lecture here. I'll see you in next video lecture.